ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਨਸਾਈਟਸ ਵਿਦ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਦ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਅਹਿਮ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਨਸਾਈਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਦ ਜੀ। ਵੈਲਕਮ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਮਨ। ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਏ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲਗੂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। तेलुगू पढ़ाई नहीं जा रही, तेलुगू कल्चर के उत्ते सर्टन एक्टिविटीज़ करवाइयां जा रही हैं। देखो, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਚਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਯੂਨਿਟੀ ਆਏਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਲਰਨ ਅਬਾਊਟ ਈਚ ਅਦਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੋਰ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇਲਗੂ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ? ਜੋ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਜੇ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲਰਨ ਅਬਾਊਟ ਨਿਊ ਥਿੰਗਸ, ਲਰਨ ਅਬਾਊਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੋਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇ ਡੱਡੂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਟਸ ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੈਡ। बेसिकली इट्स अननेसेसरी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने वाली गल है। तेलुगू किसी दिन हिमाचल बारे पढ़ो, किसी दिन तमिल बारे पढ़ो, किसी दिन केरला बारे जानो, उतों दी लैंग्वेजेस बारे जानो, उतों दा कल्चर की आ। आपां एक हैगे आ। मैं ਵੇਖੋ उस दिन भी गल कीती सी कि अनफॉर्चुनेटली ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਯੂਨਿਟੀ ਇਨ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਇਨ ਯੂਨਿਟੀ ਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਸਮਝੀਏ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੇਲਗੂ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ, ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਗੁੱਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਚਰਚਾ 'ਚ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਆਫਿਸਰਸ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਕੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲੌਜੀਕਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਫੇਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਰੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਰੋਲ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਮਹਾਉ ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਖਾਨ ਸੀ, ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਖਾਨ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੈਸਟ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਲੀਗਲ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਸ ਜਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਆਫਿਸਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਪਾਇੰਟਡ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਕਸ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਪਨਿੰਗਸ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਐਂਡ ਫਿਊ ਲਾਅ ਆਫਿਸਰਸ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਅਪਾਇੰਟਡ, ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਮੈਰਿਟ ਬੇਸਡ, ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਸਕਿੱਲ ਬੇਸਡ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਿਲੇਟਡ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਬਿਟਰੇਜ ਰਿਲੇਟਡ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਆਫਿਸਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਸਪਰਟ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਾਲੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਬੈਟਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਕਸ਼ 'ਚ ਜੀ, ਹਰ ਐਸਪੈਕਟਸ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਟੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲੈ ਆਈਏ ਤੇ ਬੈਸਟ ਪਰਸਨ ਫॉर ਦੀ ਉਸ ਜੌਬ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਟੀਚਰਸ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਰਿਟੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਕੱਟ ਆਫ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਉਹ ਕੱਟ ਆਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਲਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇਸ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹ ਕੱਟ ਆਫ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਲਈ ਕੱਟ ਆਫ ਤੁਹਾਡੀ 100 ਆ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟੇਗਰੀ ਲਈ 20 ਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਸ ਨੇ, ਟੀਚਿੰਗ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ, ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਸੀ, ਰਾਈਟ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਬੈਸਟ ਲੋਕੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਆਫ ਰੱਖ ਦੋਗੇ ਉਹ ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੈਟਰ ਤਰੀਕਾ ਹੋਏਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ, ਹੁਣ ਡਾਕਟਰੀ ਆ, ਮੈਡੀਸਿਨ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੱਟ ਆਫ ਸੇਮ ਰੱਖੋ। कट ऑफ कैटेगरी वाइज ने तुसी फीसां वेव ऑफ करो कि भाई जेड़ा एप्लीकेशन फीस है या
ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਡ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ। ਪਰ ਕਟ ਆਫ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਮਿਨੀਮਮ ਆਈਕਿਊ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਨੀਮਮ ਲੈਵਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਟ ਆਫ ਸੇਮ ਰੱਖੋ ਬਸ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜੇ ਕਟ ਆਫ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਲੈਵਲ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ ਕਿ ਭਈ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਰਟਨ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੈਡੀਸਿਨ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਹਰ IAS ਆਫੀਸਰਸ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕਟ ਆਫ ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ ਜੀ। ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਕਟ ਆਫ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਟੇਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਭਈ ਇੰਨੀਆਂ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਇਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜੇ ਕਟ ਆਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ, ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਦੇਖੋ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਪਰਪਸ ਕੀ ਸੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਅਨਿਆਏ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਫੇਅਰ, ਬਟ ਨਾਟ ਐਟ ਦੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ, ਨਾਟ ਐਟ ਦੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਦੋਸ ਪੀਪਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਰਕਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵਨੈਸ ਨੂੰ ਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੇਂਜਰ ਜੋ ਆਰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ ਉਹ ਵਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਕਟ ਆਫ ਲੋਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੇਂਜਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਦੋਂ ਇਨਕੈਪੇਬਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵੀ ਰੱਖੋ ਆਰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਸਰਟਨ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਣਾ। ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਾਸਟ ਦੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਡ੍ਰੌਪ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਬਈ ਕਟ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ IQ ਲੈਵਲ, ਮਿਨੀਮਮ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਲੈਵਲ, ਮਿਨੀਮਮ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਕਿੱਲਸ ਲੈਵਲ, ਮਿਨੀਮਮ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਲੈਵਲ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਬਲਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਗਰਾਊਂਡਸ ਤੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਮੇਕਸ ਅਸ ਹਿਊਮਨਸ। ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਜਿੰਨਾ ਵਧੇਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੌਬਸ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨ ਦੇ। ਤੇ ਅਗੇਨ ਸਮਹਾਉ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ, ਉਹਦੇ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਇੱਕ ਜੌਬ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਐਨ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਟੈਸਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟੇਕਨ, ਐਨ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟੇਕਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਿੱਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜੌਬ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੀ ਜੌਬ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ IAS ਅਫਸਰ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਰਕ ਵਾਲੀ ਜੌਬ ਲਏਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ। ਬਿਲकुल ठीक है ना। तो बंदे की काबिलियत के आधार पे उसको जॉब दी जाए। अब एक स्कैम हुआ है सर, कोल स्कैम है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के MPs के भी नाम आ रहे हैं, उनकी फैमिलीज के भी नाम आ रहे हैं और कई लोगों पे रेड्स भी हुई हैं आज। ये जो मामला है रिगार्डिंग ECL, ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, ये गवर्नमेंट रन माइंस हैं और इसमें ये इल्ज़ाम लगा कि TMC, उनके लीडर्स और उनकी फैमिलीज ने इसके अंदर इलीगली काफ़ी माइनिंग की है। जो उनको राइट्स मिले हैं इलीगली विदाउट पेइंग एनी ड्यूज टू द गवर्नमेंट, वहाँ से माइन की है। जो हमने और भी कई स्टेट्स में जैसे पंजाब में भी देखा है कि जो रेत माफिया, सो बेसिकली आप बिना परमिशन के नेचुरल रिसोर्सेज की एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं और उनको आप इलीगली प्राइवेटली बेचते हैं और सारे बेनिफिट्स आप अपने पास रखते हैं जो गवर्नमेंट के ड्यू हैं। गवर्नमेंट के ड्यू का मतलब है जो आम पब्लिक के ड्यू हैं, वो पैसे आप अपने पास रख रहे हैं, आप जनता का पैसा अपनी जेब में डाल रहे हैं। और देयर आर इनफ ए प्रायोरी एविडेंस जिसके बेसिस पे इंक्वायरीज और FIRs दर्ज की गई हैं। ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं
अभिषेक बनर्जी जी उनकी वाइफ और उनके ऊपर एक मेजर इल्जाम है। फिर उनके एक और सीनियर कार्यकर्ता हैं विनय जी, ही इज ऑलरेडी ऑन द रन, वो भगौड़े हो चुके हुए हैं। उनकी रफली मेरे को लगता है कि 80-90 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त कर दी गई है जी। और क्योंकि काफी एविडेंस मिल चुके हैं और भी 7 नई अरेस्ट हुई हैं। इसमें कुछ ECL के जनरल मैनेजर्स बहुत सीनियर लेवल की पोजीशन होती है, जो भी डिसीजन मेकिंग होती है उनको पता होता है। तो अगर ये सब कुछ हुआ होगा तो उनकी मिलीभगत से ही हुआ होगा जी। तो उसके लिए कुछ इवन PN लेवल के लोग, अब आप समझ रहे हैं कि सरकारी PN की भी क्या वैल्यू होती है, और हम कई बार हैरान होते हैं कि PN की जॉब के लिए इतने लाखों लोग कैसे लग रहे हैं जी। तो वो भी उसमें इन्वॉल्व है। वो काफ़ी चीज़ें छुपा रहे हैं, ये एजेंसीज ने बोला है। और आई एम श्योर कि एजेंसीज ईमानदारी से अपना काम करेंगे। आई एम होपिंग, इवन इफ आई एम नॉट श्योर, आई एम होपिंग कि एजेंसीज जो पब्लिक की लूट मच रही है, लोगों के नेताओं के मन में डर आए, सरकारी अफसरों के मन में डर आए कि ये लूट अब आप मचाना आसान नहीं है जी। अब जो गवर्नमेंट्स हैं, चाहे स्टेट लेवल पे चाहे सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट्स हैं, वो अकाउंटेबिलिटी लेके आएंगी जी। और ये दिखाता है अगेन कि CM उनका भतीजा, कि जब आप परिवारवाद करोगे, परिवारवाद अल्टीमेटली करप्शन और इंटाइटलमेंट लेके आता है। आपको लगता है ये तो मेरी जायदाद है, मेरा ही हक है, मैं ही इस स्टेट का मालिक हूं। जब ये परिवारवाद आता है तो ये इस चीज को खत्म करने की जरूरत है। मेरिट बेस्ड सिस्टम जो हम डिस्कस भी कर रहे थे कि अल्टीमेटली ज्यादा काबिल लोग जिनकी अकाउंटेबिलिटी हो और एक ईमानदारी वाले नेता हमें मिलने चाहिए। ये बहुत बड़े लॉसेस हैं। इससे देखो, जब गवर्नमेंट के थ्रू टेंडर जाते हैं उसमें इकोलॉजिकल बैलेंस, मतलब पूरी इन्वायरमेंट के बैलेंस का भी ध्यान रखा जाता है। इलीगल माइनिंग में इकोलॉजिकल डिजास्टर बहुत होता है जी। उससे क्या होता है, जब इलीगल माइनिंग होती है उसमें सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स भी नहीं रखे जाते जी। जो वर्कर्स वहां पे काम करते हैं उनकी जान भी खतरे में रहती है। और काफी लोग, क्योंकि इलीगल माइनिंग है, मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है कि बंगाल में कई जगह पे जहां पे इलीगल माइनिंग हो रही है, कई बार वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है, अनहेल्दी अनसेफ कंडीशन में उनसे काम करवाया जाता है और कई बार वर्कर्स मारे जाते हैं और उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, उनकी कोई इंश्योरेंस नहीं है जी। जब ये प्रॉपर प्रोसेस से होता है, ये सारी चीजें मिलती हैं। इसके अलावा आसपास के इन्वायरमेंट को इतना एक्सप्लॉइट किया जाता है कि वो जगह रहने के लायक ही नहीं रहती जी। आसपास के रूरल लोगों को, ट्राइबल लोगों को अपनी जगहें छोड़ के जाना पड़ता है। बिल्कुल। और ये पूरा गूंस के थ्रू, माफिया के थ्रू चलता है। उससे अगेन और लेवल की अनलॉफुलनेस उस एरिया में आनी शुरू हो जाती है जी। तो मेरे को लगता है कि इस तरह की ये करप्शन, जैसे हम हमेशा बात करते हैं, ये जड़ है। जैसे ही करप्शन शुरू होती है, वो पूरे के पूरे सिस्टम को, पूरी सोसाइटी को सेवक की तरह खाना शुरू कर देती है और उसको वीक, हर सिस्टम को वीक करना शुरू कर देती है और अल्टीमेटली और कई कुरीतियां सिस्टम में लेके आती है जी। तो आई होप कि सख्त से सख्त सजा मिलेगी और जल्दी इनके फैसले आएंगे। बिल्कुल सर। प्रेसिडेंट की रेस में है यशवंत सिन्हा, तो उनकी भी बयानबाजी काफ़ी सामने आ रही है। वो कहते हैं कि ईडी की रेड्स जो हो रही हैं या CBI की रेड्स हो रही हैं तो वो नहीं होंगी अगर हम आते हैं, और अगर CA जो वो लागू नहीं किया जाएगा अगर मुझे प्रेसिडेंट चुना जाता है, अगर राष्ट्रपति भवन में मैं चला जाता हूँ तो। देखो, रेस में मेरे को नहीं लगता, मेरी कैलकुलेशन ये कहती है कि ही इज लैगिंग बिहाइंड। इवन ओपोजिशन भी यूनाइटेड नहीं है। मैं अगर वेस्ट बंगाल की बात कर लूं तो वहां पे भी वो ममता बनर्जी से भी सपोर्ट नहीं ले पाए जी, क्योंकि जो कैंडिडेट NDA ने सेलेक्ट किया, एक तो उनके पास वैसे मेजोरिटी खुद में ही है और दे हैव बीन एबल टू बिल्ड अ सर्टेन लेवल ऑफ कंसेंसस। अब यशवंत सिन्हा जी ये कह रहे हैं कि 2018 में मेरे को रियलाइज हो गया कि भाई बीजेपी की जो करंट लीडरशिप है वो सही रास्ते पे नहीं है जी, और मैंने रिजाइन कर दिया। जबकि फैक्ट ये है कि जब आपको प्रोमिनेंट पोजीशंस नहीं दी गई, जब आपको रोल नहीं मिले, तो आपने पार्टी छोड़ दी जी। दूसरी बात, उनके पुत्र तो बीजेपी के MP हैं, क्या वो अपने बेटे को सही रास्ते पे नहीं, अगर वो उनको लगता है बीजेपी गलत रास्ते पे, अपने बेटे को तो सही रास्ते पे डाले जी, है ना। उनको तो वो उस पार्टी से निकाले, वो वहां के सारे प्रिविलेजेस ले रहे हैं जो पावर के साथ जुड़े हुए हैं जी, और क्योंकि इनको प्रोमिनेंट रोल नहीं मिला, ये एक स्टैंड ले रहे हैं। तो मतलब कि चिट भी मेरी और पट भी मेरी जी। अब CAA कानून को समझे बिना उसका जो हमारे देश की, और अभी तो वो लागू भी नहीं हुआ जी, राइट, और वो ये क्लेम कर रहे हैं कि अगर मैं प्रेसिडेंट हाउस में चला गया तो मैं CAA कानून लागू नहीं होने दूंगा जी। क्या वो प्रेसिडेंट की पावर्स और उसकी लिमिटेशन को नहीं समझते हैं? क्या अगर इंडिया इज अ प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, इट्स नॉट अ प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, प्रेसिडेंट डज नॉट हैव अ वीटो।
प्रेसिडेंट ज्यादा से ज्यादा एक बार जो पारित बिल होता है, दोनों हाउसेस में पारित जो बिल होता है, उसको ज्यादा से ज्यादा एक बार वापस भेज सकता है जी। दूसरी बार आपको ओके करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। अगर वो इतनी भी बात नहीं समझते हैं, इसका मतलब है कि वो झूठे क्लेम दे रहे हैं जी। कि प्रेसिडेंट बिल आने से नहीं रोक सकता। जी। प्रेसिडेंट अब और भी लोगों को देखना पड़ेगा कि जो बिल गवर्नमेंट लेके आएगी और प्रेसिडेंट पब्लिकली उसको अपोज करते रहेंगे या उसके खिलाफ ऐसे स्टेटमेंट्स देंगे, वो तो देश का अपमान होगा जी। वो देश की एम्बेरसमेंट होगी कि प्रेसिडेंट हमेशा ही गवर्नमेंट के हर डिसीजन को पब्लिकली रिव्यू करते हैं। जो आपका फेस है, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, राइट? ही माइट नॉट बी द एग्जीक्यूटिव हेड बट ही इज द हेड। और अगर प्रेसिडेंट ये बातें बोलेंगे तो मेरे को बताइए कि देश के लिए कितना एम्बेरसिंग हो जाएगा। जो देश के दुश्मन है वो इस चीज का कितना फायदा उठाएंगे, वो कितनी इसमें कितनी कंफ्यूजन जनता के लिए क्रिएट होगी। तो मेरे को लगता है कि ऐसी स्टेटमेंट्स देके वो अपने आप को वैसे ही वीक कर रहे हैं। और अगेन अमन जी, मेरे को नहीं लगता वो रेस में है। और ईडी जैसी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन पे भी सवाल उठाना जायज नहीं है। देखो, गवर्नमेंट्स इन इंस्टीट्यूशंस का मिसयूज करती है, इसमें जनता को कोई दो राय नहीं है जी। वो मिसयूज कितना है वो देखने वाली बात है। और आज अनफॉर्चुनेटली ओपोजिशन ने हमारे इंस्टीट्यूट से हमारा भरोसा उठाते जा रहे हैं। लोगों की अनहिंजिंग हो रही है। आज हमें समझ में नहीं आता क्या सही है। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए अच्छा नहीं है जी। हमारी ऑर्गेनाइजेशंस, मैं कहता हूं कि लोग इसको इस तरह से सोचें जी। आप ईडी से लेना देना बड़े लोगों का ही होता है, हमारे जैसे आम आदमी की तरफ तो ईडी देख नहीं रहा है। बिल्कुल, राइट? आप देखो कि आप जब पब्लिक सर्विसेज लेने जाते हो, आप देखो वहां पे कौन सी सरकार है और आज से 10 साल पहले से कंपेयर कर लो जी। क्या वो सर्विसेज आपको बेटर मिल रही हैं? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर मिल रहा है? क्या आपको आज कम करप्शन या ज्यादा करप्शन फेस करनी पड़ती है? क्या आज सरकारी अफसरों की मनमानी ज्यादा हो गई है 10 साल पहले से, या कम हो गई है, या 20 साल पहले से कंपेयर कर लो जी। अगर उसका क्वेश्चन ये है, मैं तो ये मानता हूं कि आज जनता की पावर बढ़ी है। आप भी अपने मन में ये देखिए, क्योंकि अदरवाइज हम कंफ्यूज रहेंगे। इससे धीरे धीरे हमारा जो हमारा सरकारी इंस्टीट्यूशन पे भरोसा उठना नहीं चाहिए, क्योंकि वो की है जनता का भरोसा टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, इट्स प्रोसेसेस, इट्स इंस्टीट्यूशन इज की टुवर्ड्स रनिंग अ हेल्दी डेमोक्रेसी। आज अनफॉर्चुनेटली कुछ स्वार्थी पॉलिटिशियन सत्ता के लालच में कि मैं समहाउ सत्ता में आ जाऊं, वो हमारे अपने ही इंस्टीट्यूशन से जनता का भरोसा उठाने का काम कर रहे हैं। और काफी लोग उनकी बातों में आएंगे क्योंकि उनके पास क्लैरिटी नहीं है। तो मैं ये सिंपल सा आपको लिटमस टेस्ट बताता हूं। आप अपने आप से पूछ लीजिए, आज जब आप सरकार से डील करते हो, क्या वो पहले से आसान हो गया कि मुश्किल हो गया? बिल्कुल। क्या आज आपको फिर लाइनों में लगना पड़ रहा है कि आपकी चीजें ऑनलाइन हो पा रही हैं? जी। सिंपल से टेस्ट है। अगर आपको लगता है आपकी गवर्नमेंट पहले से बेटर सर्विस दे रही है, इसका मतलब देश अच्छे रास्ते में जा रहा है और आप इस चीज में खुशी मनाइए और प्राउड फील करिए। सर, श्रीलंका क्राइसिस कई दिनों से चर्चा में है। वहाँ के प्रेसिडेंट राजपक्षे वो असाइलम ले सकते हैं सिंगापुर में, ये चर्चा आ रही है सर। देखो, इस वक्त जो श्रीलंका की सिचुएशन है बहुत क्रिटिकल है जी। वहां पे काइंड ऑफ एनार्की, पूरे के पूरे प्रोसेस और इंस्टीट्यूट्स वहां पे खत्म हो चुके हैं और देयर इज अ लैक ऑफ, इट इज लाइक अ हेडलेस चिकन जी। पेमेंट क्राइसिस है, रिसोर्स क्राइसिस है, इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है, बेसिक नेसेसिटीज के लिए भी। और ऊपर से जो टॉप लीडरशिप है वो भाग चुकी है और सड़कों पे राइट्स हो रहे हैं। इस वक्त बड़ा जरूरी है कि जो प्रेसिडेंट वहां से जा चुके हैं, विच इज अनफॉर्चुनेट कि आपका लीडर आपको ऐसे मुश्किल समय पे भाग जाए और सिर्फ अपना ही इंटरेस्ट देखे, पर इस वक्त वहां पे इमीडिएटली ऑर्डर रिस्टोर होना चाहिए, नई गवर्नमेंट बननी चाहिए, इमरजेंसी गवर्नमेंट बननी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर जब तक नहीं आएगा आप वापस ट्रैक पे नहीं आ पाएंगे जी। और ये एक लेसन है अगली गवर्नमेंट्स के लिए कि वो अपने रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट ने एक तो उनका जो डेट लेने का तरीका था, किस सोर्सेज से ले रहे थे, जैसे चाइना से ले रहे थे, उसने उनको मुश्किल में डाला। कोविड ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी। दूसरा, उनकी जो पॉलिसी थी अनसाइंटिफिक पॉलिसीज, कि आपने एग्रीकल्चर के साथ रिस्क लिया, आपने अपनी प्रोडक्टिविटी डाउन कर दी, एक ही दिन में सारा कुछ ऑर्गेनिक पे शिफ्ट करने का कोशिश की। उसको स्टेप बाय स्टेप करना होता है, अपनी सॉइल्स को रेडी करना होता, और ऐसे कई और उन्होंने फैसले लिए विच वर नॉट वेरी स्मार्ट जी। और यही चीजें अगर वो स्मार्टली करते तो ऑर्गेनिक खेती के कारण वो अपने देश की इनकम ज्यादा भी कर सकते थे। तो ये सारी चीजें वहां पे हुई हैं
अब वो असाइलम सिंगापुर में लेंगे, क्योंकि वहां पे काफी बड़ी सिंगापुर में श्रीलंकन कम्युनिटी है जिनके साथ उनके कनेक्शंस होंगे ही होंगे जी। राइट। वहां पे जो टॉप बिजनेसमैन होंगे श्रीलंकन ओरिजिन के, और वहां पे काफी सीनियर पोजीशंस में श्रीलंकन ओरिजिन के लोग हैं जी। तो उनके लिए वहां पे एक नेचुरल सा लगता है टाइप। और पर इस वक्त जो सबसे बड़ा चिंता का विषय उनका असाइलम नहीं है, सबसे बड़ा चिंता का विषय है जो जनता है श्रीलंका की। वहां पे जो लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया है, इस वक्त इंडिया को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। क्वाड जो बना है इस वक्त, क्वाड का रोल इमीडिएटली इंपॉर्टेंट है जी। इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया को बैठना चाहिए, क्योंकि ये इंडो पैसिफिक रीजन का इशू है जी। इस वक्त। वहां पे अगली गवर्नमेंट वहां पे लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए जो सपोर्ट इंडिया दे सकता है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करने के लिए उनकी आर्मी को बेटर तरीके से नेविगेट करने के लिए जो भी सपोर्ट हम दे सकते हैं हमें देनी चाहिए। फंडिंग क्वाड को मिलकर करनी चाहिए ताकि चाइना इस सिस्टम का एडवांटेज ना उठा पाए। आई एम क्वाइट श्योर कि चाइना के लोग लगे होंगे कि अगली गवर्नमेंट चाइना की तरफ आए। कल मैं उनके लीडर ऑफ ऑपोजिशन की बात सुन रहा था तो हमारे देश के एक एंकर ने पूछा कि क्या चाइना का डेट इसका रीजन है। उन्होंने ये बोलने से साफ मना कर दिया। इसका मतलब है कि उनके ऑपोजिशन कुछ पॉलिटिशियंस चाइना के इन्फ्लुएंस में है। हालांकि क्वाइट ऑब्वियस है, पूरी दुनिया मान चुकी है कि चाइना का डेट ट्रैप है जी। पर अगर एक पॉलिटिशियन जो प्रेसिडेंट बन सकता है और वो कह रहा है कि इसमें चाइना का रोल नहीं है, इंटरनल रोल है और चुनी हुई गवर्नमेंट का रोल है जी, तो ऑफ कोर्स उनका रोल होगा, उनकी गलतियां होंगी बिल्कुल। बट इसका मतलब है कि इंडिया को अब ध्यान रखने की जरूरत है। इंडिया को वहां पे एक्टिवली थ्रू क्वाड, क्योंकि इंडिया के विसिनिटी में है, इंडिया को अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बनाना है। तो इंडिया को अगली गवर्नमेंट कैसे आएगी, किस तरह से आएगी, जो श्रीलंका के हित में काम करे और वहां पे कभी भी एंटी इंडिया एक्टिविटीज ना शुरू हो पाए, ये ध्यान रखना पड़ेगा। जी बिल्कुल सर। सर यूके के प्राइम मिनिस्टर की दौड़ में भारतीय मूल के ऋषि सुनक हैं, तो वो क्या कामयाब हो पाएंगे? देखो ए प्रायोरी तो लग रहा है कि उनके बेस्ट चांस है, क्योंकि अभी जो इनिशियल वोटिंग हुई है उसमें 88 वोट्स के साथ वो सबसे आगे हैं। जी। अब इसका प्रोसेस क्या है कि अब जैसे पहले 8 से 6 हुए, ऐसे धीरे धीरे 21 जुलाई तक सिर्फ 2 कैंडिडेट रह जाएंगे। जी। अभी जो चुने हुए मेंबर्स हैं कंजर्वेटिव पार्टी के, उनकी वोटिंग के बेसिस पे धीरे धीरे टॉप 2 कंटेंडर्स रह जाएंगे। जी। उसके बाद जो 2 लाख के करीब कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर्स हैं जी, उनकी वोटिंग होगी, उनकी आपस में एक डिबेट होगा, उसके बेसिस पे वो जिसको वोट देंगे वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और सितंबर तक नया प्राइम मिनिस्टर अनाउंस हो जाएगा, विच इज नॉट वेरी फार अवे। और ये भारत की जो सॉफ्ट पावर है, भारत के लोगों की काबिलियत है, जो इंडियन ओरिजिन के लोग जो पूरी दुनिया में अपना झंडा गाड़ रहे हैं, टॉप कंपनीज के सीईओ बन रहे हैं, अब तो टॉप देशों के प्राइम मिनिस्टर भी बन रहे हैं। जी बिल्कुल। तो मेरे को ये लगता है कि जो इंडिया का जो इनहेरेंट टैलेंट है, जो इंडियन, इनफैक्ट ऋषि सुनक जी खुद बोलते हैं कि आई एम अ इंडियन एज वेल एज ब्रिटिश। जो उनकी एक इंडियन नेस है, वो ये कहते हैं कि उन्होंने उनको एक काइंड ऑफ कैपेबल बनाया है, उनके अंदर वो वैल्यूज दी हैं, इंडियन ट्रेडिशनल वैल्यूज जो है उनकी, उसके कारण ही सेज दैट ही हैव बीन वेरी सक्सेसफुल इन हिज लाइफ और ही हैज बीन अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन। वो स्टैनफोर्ड से पढ़े जी, और खैर उनका नारायण मूर्ति जी के वो दामाद भी हैं, तो उनका इंडियन कनेक्शन बहुत डीप है जी। तो मेरे को लगता है कि अगर एक इंडियन ओरिजिन और इसमें उनकी लॉबिंग करने में, जहां तक भी हम भी इंडियन लोग उनको सपोर्ट करें, वहां पे इंडियन बहुत इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस में है और आई एम श्योर कि वो लॉबिंग कर भी रहे होंगे कि ऋषि सुनक जी ही हमारे यूके के प्राइम मिनिस्टर बने, तो इस वक्त उनका बेस्ट चांस है। शुक्रिया सर। इस तरह की और इनसाइट्स के लिए, करंट अफेयर्स के लिए और ज़रूरी जानकारी के लिए देखते रहिए इनसाइट्स विद विशाल सूद।